Assalamu alaikum students, how are you? I hope you are fine and safe at your home. I am your teacher Aisha Ali. Today we are here for discussing SST book for class 7. As you know student, we have covered our midterm syllabus. Now we are going to revise our syllabus. We will start from your book, that is Know Your Word, and your chapter is chapter number 4, and your topic name is the Delhi Sultanate, which was begun 1186 to 15, and ended 1526 CE. First, I am going to show you this one. This is the map of subcontinent. What is this? This is a map of subcontinent. सबकॉन्टिनेंट उस वक्त इसे सब कॉन्टिनेंट कहते थे, मगर अब जो है आजकल प्रेजेंट कंडीशन में ये डिवाइडेड हो चुका है इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश के दरमियान। आज हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत। उस वक्त का कैपिटल जो था, उसको जो ये सब कॉन्टिनेंट पूरा एक कहलाता था, तो इस पर रूल जो करते थे, जो उसका कैपिटल था वो दिल्ली था। उस दिल्ली से तमाम रूलर्स अपनी हुकूमत को रूल किया करते थे। अब वहाँ पर कितने हुक्मरान गुजरे, किस तरह गुजरे, आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। इस चैप्टर के की पॉइंट्स हैं हमारे पास 5 डायनेसिटीज़ हैं जिन्होंने दिल्ली पर रूल किया। नंबर 1 है उसमें, नंबर 1 द ममलूक्स और स्लेव डायनेसिटी which was started from 1206 to 1290 CE, and second is the Khilji's dynasty which was began 1290 to and ended at 1320 CE, and the third one we have the Tughlaq dynasty that was started from 1320 to 1400 and ended at 1413 CE. Number 4 is the Sayyidis dynasties 1440 to 1451 CE, and the last one the Lodhis dynasty 1451 to 1526 CE. Now we have covered 5 dynasties names. Number 1 Mamluks or slave, number 2 the Khiljis, number 3 the Tughlaqs, number 4 the Sayyidis, number 5 is the Lodhis. ये तो डायनेसिटीज़ के नेम थे। अब इनके अंदर जितने रूलर्स थे, उन्होंने जो किस ड्यूरेशन में किस तरह से रूल किया, अब हम उनको डिस्कस करेंगे। वी स्टार्ट फ्रॉम द ममलुक्स और स्लेव डायनेसिटीज़। नंबर 1 डायनेसिटी, वी हैव 5 रूलर्स इन दिस डायनेसिटी। नंबर 1 वाज कुतुबुद्दीन ऐबक. His era was between 1206 to 1210 CE. He was the ruler for 4 years, which his leadership was starting from 1206 to 1210. Then second one was Iltutmish. Iltutmish ruled in 1211 to 1236 CE. थर्ड पे आती है हमारे पास रज़िया सुल्ताना। रज़िया सुल्ताना रूलर थी, फर्स्ट वुमेन रूलर थी जिन्होंने किसी गवर्नमेंट को रूल किया। उनका एरा था 1236 to 1240 CE. Then we have Nasiruddin Muhammad. His era was 1246 to 1266 CE, and the last one for this dynasty was Ghiyasuddin Balban. His era was 1266 to 1287 CE. Now I am going to read you about these rulers, how they rule. In Mamluks or slave dynasty, we discuss number 1 Kutubuddin Aibak. Open your book page number is 18. Book page number is 18. I am going to read you. Kutubuddin Aibak, his era was 1206 to 1210. Kutubuddin Aibak was the founder of the Mamluk or slave dynasties. Opponent Sultan of Delhi by Shahabuddin's successor. He made Lahore his capital and created the first Islamic empire on the subcontinent. ये इसका फाउंडर भी कहते हैं ममलुक डायनेसिटी का, और इसने क्या था, अपना कैपिटल बनाया था लाहौर को, और वहाँ से अपनी हुकूमत चलाता था, और इसने फर्स्ट इस्लामिक एम्पायर क्रिएट की थी। अ जर्नल ऑफ फाइन स्टैंडिंग एंड कैरेक्टर, ऐबक वाज नोन एज Lakhabaksh because of his generosity. He encouraged education and valued men of learning. Aibak ordered the construction of
कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क एंड कुतुब मीनार इन दिल्ली। इसके दो मशहूर काम जो हैं, उसके दो मशहूर कामों में कुतुब मीनार दिल्ली का है और कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद इसने तामीर करवाई, विच अनफॉर्चुनेटली कुड नॉट बी कम्प्लीटेड ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, जो कि इसकी ज़िंदगी में बदकिस्मती से मुकम्मल ना हो सकती, वो उन्हें मुकम्मल हुआ हुआ ना देख सका, उसका इंतकाल हो गया था। ऐबक डेड इन 1210 CE, उसका इंतकाल कब हुआ था? वी हैव लर्न 1200 CE उसका लास्ट टाइम था। देन अल्तमश 1200, इसके बाद सेकंड रूलर आया, उसका स्टार्टिंग पॉइंट था 1211 और एंड पॉइंट था 1236 CE। अब हम अल्तमश के बारे में पढ़ते हैं। On amusing power, Iltutmish had to deal with many problems. The biggest of them was the three important and equally ranked generals of Aibak, Sami Nasiruddin, Kabacha, Tajuddin, Yildiz and Ali Mardan Khilji, challenged his succession to the throne of Delhi. जब अल्तमश आया तो लास्ट जो बादशाह गुजरा था, वो उसके जो 3 जनरल थे वो नहीं चाहते थे कि अल्तमश उन पर रूल करे, तो इसलिए उसके लिए मुश्किलात खड़ी करते रहते थे, जिससे अल्तमश को देखना था, समझना था, उनसे बचना था। इन बैटल बिटवीन 1211 to 1226 CE, Iltutmish defeated all three and extended his empire up to Bengal in the eastern part of the India. लेकिन अल्तमश ने उनसे जंग की और फतह हासिल की और उसने बाकी अपने एम्पायर को इंडिया में भी फैला लिया। थर्ड वन है हमारे पास रज़िया सुल्ताना। शी वॉज द फर्स्ट लेडी ऑफ मुस्लिम वुमेन। एज अ मुस्लिम वुमेन शी रूल्ड ऑन द दिल्ली। her era was 1236 to 1240। उनका जो ड्यूरेशन था वो 4 years का था। रज़िया सुल्ताना इज़ द फर्स्ट फीमेल मुस्लिम रूल्ड इन हिस्ट्री। शी हैड ऑल द क्वालिटीज़ ऑफ अ लीडर। वो बहुत अच्छी लीडर थी, बट उन्हें बहुत ज़्यादा अपोजिशन का सामना था क्योंकि वो लेडी थी और मेल नहीं चाहते थे कि वो उनके अंडर काम करें। शी फेस अ लॉट ऑफ अपोजिशन फ्रॉम मैनी नोबल जनरल एंड हर ओन ब्रदर बहराम शाह बिकॉज शी वॉज अ वुमेन इन हर ब्रीफ 4-year rules. Razia Sultana made a deep impact on people. The Sultanate remained peaceful and well governed during her region. She was devoted to her Sultanate and her subjects. She established school center for research and public libraries that include the work of ancient philosophers along with Islamic literature. Even her opponent at the time agreed that she was a fine ruler who could have carried out Iltutmish legacy as well as Iltutmish himself. रज़िया सुल्ताना जो थी वो बहुत ज़बरदस्त लीडर थी, मगर उन्हें बहुत सारा अपोजिशन का सामना था। इवन उनके जो भाई थे बहराम शाह, वो भी नहीं चाहते थे कि वो रूल करें, वो चाहते थे वो खुद रूल करें। मगर उनके दौर में बहुत ज़्यादा तरक्की गई, वो चाहती नहीं लोग तालीम हासिल करें, जिसके लिए उन्होंने बहुत सारे तालीमी इदारे बनाए, लिटरेचर को सपोर्ट किया। जो उनके अपोनेंट भी थे वो उस वक्त वो तक आज ये कहते हैं, वो उनका कहना भी यही कि वो बहुत अच्छी रूलर थी, मगर उनको बहुत ज़्यादा अपोजिशन का सामना था और उनके खिलाफ बहुत सारी साजिशें होती रहती थी। उसी का शिकार एक साजिश का वो हुई, शहर से बाहर एक जो जंग हो रही थी, उस दौरान उनको डाकुओं का रूप धार के डाकुओं के गेटअप में कुछ लोगों ने उन्हें कत्ल कर दिया था, उन्हें और उनके शौहर को। नंबर 4 पे हमारे पास नासिरुद्दीन मोहम्मद। इनका एरा शुरू होता है 1246 to 1266। इनका ड्यूरेशन ऑलमोस्ट 20 years का है। Nasiruddin had been by his father's side in his battle. His power sudden, he entrusted all matters of Sultanate to his loyal ministry Ghiyasuddin Balban and spent most of time in his pursuit of knowledge, calligraphy, Ilmul Quran, the study of Quran were his passion. नेक हर वक्त कुरान पढ़ने वाले नासिरुद्दीन मोहम्मद जो हैं, वो उनका ज़्यादा उन्हें अपने सपोर्ट किया, वो काम कर देते थे, अपने जर्नल्स के सपोर्ट करते थे और ज़्यादातर कोशिश होती थी कि वो कुरान की तालीम हासिल करें। उन्हें कुरान की तालीम हासिल करने का बहुत ज़्यादा शौक़ भी था और अपने दौर में उन्होंने इस तालीमी मराकज़ भी कायम किए। नंबर 5 लास्ट हमारे पास है गयासुद्दीन बालबन ऑफ द ममलूक्स डायनेस्टी।
His era was 1266 to 1287 CE. Balban was a tough, वो एक टग ruler था, captured and enslaved by Mongolian as a child and bought by Iltutmish later. वो बचपन से उससे मंगोलियंस ने कैप्चर यानी अगवा कर लिया था और उसके बाद कि उसे रिहाई किसने दिलाई थी? अल्तमश ने रिहाई दिलाई थी. He rose through the rank to become an officer, a general and finally Sultan of Delhi through his talent and capabilities. उसने स्टार्ट किया अपना कैरियर एज ए उसके रैंक्स बढ़ते गए. एज ए पहले वो छोटा ऑफिसर था, देन जनरल बना, देन उसके बाद वो सल्तनत का बादशाही बन गया अपनी मेहनत की वजह से. He dealt with all three successfully and on assuming power, Balban swiftly moved to sort out problem created by the Hindus and Mongols and outward known to be a cunning and courageous leader. He dealt with all three successfully and mentioned peace and सिक्योरिटी थ्रू आउट हिज सल्तनत. उसने क्या किया? उसने तमाम लोगों को, उसका ख़ास काम ये था कि उसके दौर में अमन फैलाया गया, अमन लोगों ने महसूस किया. नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंड डायनेसिटी है विच इज़ द खिलजी डायनेसिटी विच वॉज बिगेन 1292 एंड एंडेड एट 1300. इसका फर्स्ट रूलर कौन है? इसका फर्स्ट रूलर है हमारे पास जलालुद्दीन खिलजी. इसका एरा कब शुरू हुआ था? उसका एरा शुरू हुआ था 1990 टू 1296. उसका जो ड्यूरेशन था वो 6 ईयर का ड्यूरेशन था. मलिक फ़िरोज़ खिलजी इज़ पॉपुलर नोन एज जलालुद्दीन खिलजी. उसका पूरा नाम था मलिक फ़िरोज़ खिलजी, लेकिन वो मशहूर किस नाम से था? उसका नाम था जलालुद्दीन खिलजी. ही वॉज ऑलरेडी इन हिज 17 when he came to power. वो सिर्फ 17 साल का था जब उसे दौरे हुकूमत मिला, यानी जब उसे सल्तनत मिली, जब वो बादशाह बना. He was a tolerant, kind and peaceful leader who ruled with humility and forgiveness. वो बहुत सब्र करने वाला, बहुत अमन पसंद और अच्छा लीडर था और हमेशा वो लोगों को माफ़ कर दिया करता था. उसके दौर में भी लोगों ने अमन महसूस किया. ही pardoned many prisoners and devoted shedding blood. उसने बहुत सारे लोगों को माफ़ कर दिया जिन्हें सज़ाए मौत भी दी जा चुकी होती थी, उन्हें भी वो माफ़ कर देता. He was widely respected among the nobles and the people. However, a group of nobles was unhappy at his peaceful way and conspired against him. Alauddin was Jalaluddin's nephew, son-in-law and governor of Allahabad. Wild and reckless, he often acted without official order or advice from the Sultanate. His bravery made him famous, and as a result, he became more ambitious, taking advantages of Alauddin's nature. The noble incited him to rebel against his uncle Sultan Jalaluddin. As a result, Alauddin Khilji Jalaluddin and succeeded him as the next Khilji Sultanate in 1296. इसका नेक्स्ट जो रूलर बना वो कौन था? उसी का नेफ्यू था, उसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी. उसकी हुकूमत कब शुरू हुई? उसकी हुकूमत शुरू हुई 1296 से शुरू हुई थी और ख़त्म कब हुई? 1316 तक. इसके बारे में जानते हैं. आफ्टर कमिंग टू पावर, अलाउद्दीन रियलाइज एंड रिग्रेटेड हिज क्राइम. उससे शर्मिंदगी हुई क्योंकि वो बगैर सोचे समझे, जब वो जनरल था तो वो जब वो बादशाह नहीं बना था उससे पहले वो बगैर सोचे समझे काम कर दिया करता था. बहादुर तो वो था मगर वो बगैर सोचे समझे काम करता था, जो कुछ काम उससे गलत भी हो जाते. लेकिन जब वो बादशाह बना तो उसे एहसास हुआ कि ये काम मुझसे गलत हो गए, जिस पर वो काफ़ी शर्मिंदा भी था, जिसके बाद उसने लोगों की भलाई के लिए काम करना शुरू कर दिया. ही ट्राइड टू अटोन फॉर इट बाय डूइंग गुड फॉर हिज पीपल. हिज रीजन वॉज मार्क्ड बाय रिपीटेड अटैक्स बाय द मंगोल्स. और उस पर अक्सर मंगोल्स अटैक करते रहते थे उसके रीजन. टुगेदर अलाउद्दीन एंड हिज 3 ब्रदर्स जफर खान, उलग खान एंड नुसरत खान
repulsed the Mongol invasion with great courage and planning and finally defeated them. और इन तीनों ने अपने तीन भाइयों के साथ मिलकर मंगोल्स को भी शिकस्त दी. अलाउद्दीन also had issues with troublemaking Rajput in the south and rebellious nephew in Oudh in the east. He managed to suppress both groups and move on to conquer Deccan, after which almost the entire subcontinent came under his rule. उसने पहले मंगोल्स को शिकस्त दी, उसके बाद उसने जो है बाकी जो इसके अपोनेंट थे उनको शिकस्त देता गया और उसके बाद उसने तमाम सब कॉन्टिनेंट के जितने बकिया हिस्से थे उन पर भी उसने रूल किया. अलाउद्दीन इज़ नोन एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर एंड रूलर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. अलाउद्दीन का नाम जो है इस इलाके रूलर्स में मोस्ट जो है एडमिनिस्ट्रेटर यानी ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर वो होता है जिसके एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छा काम होता है, तो वो अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर मशहूर था. नंबर 3 पे हमारे पास द तुगलक डायनेसिटी. इसमें हमारे पास कौन आते हैं, इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले आते हैं गयासुद्दीन तुगलक. उनका एरा गयासुद्दीन तुगलक राइज टू पावर एंडेड द खिलजी रूल एंड बॉट इन अ न्यू रूलिंग डायनेसिटी द तुगलक. उसका फाउंडर कौन था? तुगलक डायनेसिटी का फाउंडर था गयासुद्दीन तुगलक. दिस डायनेसिटी हैड वेरी कैपेबल रूलर बट अनफॉर्चुनेटली दे डिड नॉट अचीव मच सक्सेस. मगर ये बहुत ज़्यादा अरसा ना चल सकी. सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक रूल ब्रीफली फ्रॉम 1320 टू 1325. सिर्फ उसने 5 ईयर्स का टाइम लिया अपने रूल के लिए. ही वॉज अ काइंड रूलर ईगर टू डू गुड फॉर हिज पीपल. वो चाहता था अपने लोगों के लिए तरक्की उनको मुहैया कर सके, उनके लिए अच्छाई कर सके. An experienced administrator, he had played an important role in quelling the Mongols' attack during Alauddin's rule. Sadly, he died in an accident while attending a victory reception. उसका इंतकाल वो ऐसे हुआ कि वो एक विक्ट्री रिसेप्शन अटेंड करने जा रहा था मगर उसका एक्सीडेंट हो गया और उसका डेथ हो गई. Muhammad bin Tughlaq was the Sultan. He was the next ruler of this dynasty. Muhammad bin Sultan Tughlaq was Sultan of exceptional brilliance. He was a learned man, well versed in religion, literature, philosophy, medicine and astronomy. उसे इन सब चीज़ों को शौक था. A critical thinker, he had great ideas and strategies for the development of his empire, but many of his ambitious ideas failed and he tried to make up for them. Taxes were high during his region. उसका सबसे बड़ा जो फॉल्ट था या जो उसकी हुकूमत का लोग अच्छा नहीं समझते थे, उसने बहुत ज़्यादा टैक्सेस का रेट हाई कर दिया था. जितना टैक्स कम होता है उतना आवाम को रिलीफ मिलता है, उससे आवाम को इतना फ़ायदा होता है. मगर उसके दौर में जो उसका जो है उसको जो डाउन करता है उसके इलाकों उसमें यह होता है कि उसका जो टैक्स थे वो बहुत ज़्यादा थे. नंबर 4 पे हमारे पास थर्ड वन पे फिरोज शाह. इस डायनेसिटी के लास्ट रूलर का नाम है हमारे पास फिरोज शाह. मोहम्मद बिन तुगलक कज़न फिरोज शाह, ही वॉज द कज़न ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, सक्सीडेड हिम. हिज लॉन्ग एंड prosperous rule of 37 years is remarkable for his welfare projects of the people. These include construction of mosques, school and carnivals, lower tax rates and development of an efficient irrigation system with dam and canals. He was popular and just sultan who ruled with kindness and generosity. Firoz Shah was the ruler who ruled almost 37 years और उसके दौर में बहुत सारा जो है पॉजिटिव काम हुआ और उसने अपने लोगों को बहुत ज़्यादा सहूलियात दी. उनके लिए बहुत सारे इदारे बनाए, मसाजिद तामीर की गई, तालीमी इदारे बनाए, तालीमी मराकज़ बनाए, कैनाल बनाए, डैम बनाए. और वो उसने सबसे अच्छा काम जो उसका मशहूर है वो ये कि उसने टैक्स रेट बहुत कम कर दिया था. देन हमारे पास आती हैं 4 डायनेसिटी. इसमें कौन रूल करते हैं? द सैयदीज़ डायनेसिटी विच वॉज स्टार्टेड फ्रॉम 1414 एंड एंडेड एट 1451. इन दिस डायनेसिटी Timur appointed a nobleman Malik Khizr Khan to manage the affairs in Multan and
दीपालपुर। मलिक खिज़र स्टेड इन द रीजन फॉर अबाउट 15 ईयर्स। मलिक खिज़र का एरा जो था वो 15 ईयर्स का था। इस एरा में conquered Delhi and became the ruler. He founded the Sayyid dynasty. He was the Malik Khizr was the founder of the Sayyidis dynasty, named because he claimed to be descended from the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The Sayyid rule was a short one, and none of the rulers achieved anything of significance. कम एरा था, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें अचीव नहीं की गई, मगर इनका टाइम पीरियड काफ़ी शॉर्ट था ना। देन हमारे पास है द लोधीज, विच वॉज स्टार्टेड फ्रॉम द लास्ट डायनेसिटी of the Delhi Sultanate, that was Lodi Sultanate, which was started from 1451 to and ended 1526 CE. इसके फर्स्ट रूलर का नाम है बेलूल लोधी. बेलूल लोधी was the founder of the last of the dynasties of the Delhi Sultanate. He was अफगान. जो बेलूल लोधी था वो अफगान था. And a competent ruler, Belul considered himself the rightful king because he was distantly related to Alam Shah, the last Sayyid Sultan. He was need to extend his empire and began by conquering lots territories. Belul was a pious and humble ruler. He treated his noble with respect and allowed people to meet him without the official protocol demanded by Sultanate. He listened to the complaints with genuine interest and had matter resolved. Sikandar, his third son, succeeded him at the next Lodi king on his death in 1489 CE. अब ये बेलूल लोधी के बाद जो बना वो था सिकंदर लोधी. सिकंदर लोधी इसके बेटा था, वो इसका तीसरा वाला बेटा था. सिकंदर इज डिस्क्राइब्ड एज द मोस्ट कल्चर्ड सुल्तान टू सिट ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली एंड स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द लोधी रूलर. अपने लोधी रूलर्स में से स्ट्रॉन्ग कंसिडर किया जाता है और वो बहुत ज़्यादा कल्चर्ड उसे समझा जाता है. ही वॉज डिवोटेड टू ऑल फॉर्म ऑफ लर्निंग, स्पेशली मेडिसिन एंड पोइट्री. उससे मेडिसिन पढ़ने, पोइट्री के बारे में जानने बहुत ज़्यादा शौक था. सिकंदर वॉज पियस मुस्लिम, फेयर एंड जस्ट. इज डीलिंग विद पीपल, वो लोगों के साथ अपने मामला ताल्लुकात स्ट्रेट फॉरवर्ड रखता था. एंड ड्यूरिंग हिज रूल ही कंट्रोल द प्राइसेस ऑफ फूड आइटम एंड अदर एसेंशियल commodities and took personal interest in administrative issues and solving people's problem. It is for these reasons that the people loved and respect him. He died in 1517 CE. He was succeeded by his son Ibrahim Lodi. उसके दौर में भी लोगों को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला. वो बहुत कल्चर था. उसने भी लोगों की फलाह के लिए बहुत सारे काम किए. उसने कोशिश की कि जो महंगाई का रेशो है वो कम से कम रखा जाए, टैक्सेस कम से कम रखे जाएं, फूड आइटम जो हैं लोगों को बराबर सप्लाई मिलती रहे उनकी, और वो महंगे ना हों, वो लोगों की पहुंच तक हों. उसके बाद जिसने रूल किया वो उसका ही बेटा था, उसका नाम था इब्राहिम लोधी. टफ कंपोनेंट इब्राहिम लोधी लेक द ड्राइव एंड सिंसेरिटी हिज फादर एंड ग्रैंडफादर एट पर्सेस. इब्राहिम लोधी भी अपने फादर और ग्रैंडफादर की तरह सिंसियर ही था लोगों के साथ. ही वॉज हॉट टेम्पर्ड, मगर वो बहुत गुस्से वाला था. एंड टेकलेस and this triggered many conspiracies against him in his own court. As a result, he was unable to keep his empire in order. वो भी नेचर वाइज तो वो बहुत अच्छा था, अपने फादर और ग्रैंडफादर की तरह था, मगर वो टेम्पर उसका बहुत जल्दी हाई हो जाता था. वो बहुत गुस्सा कर जाता था, जिसकी वजह से वो लास्ट डिसीजन जो था बहुत गलत कर लेता था. और उसका रूल का लैग जो करने की वजह थी वो यही थी कि उसको गुस्सा आता था और गुस्से में वो अपना नुकसान कर दे जाता था, जिसकी वजह से उसका एम्पायर भी बहुत जल्दी उसके हुकूमत का खात्मा हो गया. दौलत लोधी, द गवर्नर ऑफ लाहौर, रिक्वेस्टेड ज़हीरुद्दीन बाबर टू हेल्प हिम एंड द अदर नोबल डिपोज इब्राहिम so that Daulat Lodi could be the next ruler. Babar did come to their help, but much to their disappointment declared himself the ruler. This led to an uprising and revolt by the Afghan, who later played an important role of weakening the Mughal rule. Babar's arrival opened a new chapter in his history of rulers on the subcontinent, the Mughals.
इसके बाद जो इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे वो मुग़ल्स होगा। लेकिन अभी हमने पढ़ा जो हमारे पास लास्ट डायनेसिटी थी, उसके अंदर उसका रूलर लास्ट कौन था इब्राहिम लोदी, जिसने काम तो उसके सारे अच्छे थे, मगर देखें गुस्सा अच्छा नहीं होता सेहत के लिए, इसीलिए उसे भी नुकसान हुआ और उसकी भी लीडरशिप ख़त्म हो गई। ये आज भी हमारी डायनेसिटीज़ हमने पढ़ी थी, 5 डायनेसिटीज़। हम रिकैप करते हैं अपना 5 डायनेसिटीज़। दिल्ली सल्तनत, नंबर 1 द ममलूक्स और स्लेव, इसके जितने रूलर्स थे कुतुबुद्दीन ऐबक, अल्तमश, रज़िया सुल्ताना, नासिरुद्दीन मोहम्मद, गयासुद्दीन बालबन। सेकेंड डायनेसिटी द खिलजी डायनेसिटी, इसके रूलर हैं जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। एंड थर्ड वन वी हैव द तुगलक डायनेसिटी एंड दीज रूलर आर गयासुद्दीन तुगलक, नंबर 2 मोहम्मद बिन तुगलक, नंबर 3 फिरोज शाह। एंड द फोर्थ वन सैयदीज़ डायनेसिटी, इसमें हमने मलिक खज़र के बारे में पढ़ा था। नंबर 5 द दाऊदीज़ डायनेसिटी, दिस इज़ द लास्ट डायनेसिटी, इसके रूलर हैं बैलूल लोदी, सिकंदर लोदी एंड इब्राहिम लोदी। आई होप यू गेट इट वेल। एंड बच्चों आपने इसको दोबारा से बहुत अच्छा पढ़ना है, बहुत अच्छे तरीके से रीड करना है, ताकि नेक्स्ट असेसमेंट जब आपको मिले तो आप उसकी फिलिंग द ब्लैंक्स भी हो सकते हैं, ट्रू फॉल्स भी हो सकते हैं, मैचिंग भी हो सकती है। आप इसे दोबारा जितना अच्छा रीड करेंगे उतना अच्छा आप असेसमेंट दे सकेंगे। सो बाय फॉर नाउ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।